और आपने इस रंगोली कंपटीशन से क्या सीखा? First, you tell me what was your experience? अभी कोई बच्चा बोला तो बहुत अच्छा रहा, कहाँ गया? और experience, give me a report on Rangoli competition at Simaj. This was your first event? यस मैम, लाइफ का ही मतलब सीमेज का ही नहीं, लाइफ का पहला रंगोली था। लाइफ? यस मैम। पहले कभी बनाई ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, स्किल डेवलपमेंट का भी की भी जगह है, नॉलेज के अलावा। मैम इतना मतलब ये नहीं था जो पहली बार बनाएंगे और इतना अच्छा बनेगा। हम लोग अपने आप से बहुत खुश थे, खास करके जो हमारे ग्रुप के टीम मेंबर थे वो लोग ने भी बहुत अच्छा मतलब साथ में मिलके बहुत मतलब एंजॉय के साथ बहुत अच्छा मतलब बनाया, बहुत अच्छा लगा और एंजॉय भी बहुत किए। हाँ, सीखा क्या? मेरा मतलब है कि आपने इस रंगोली कंपटीशन से अपने आप को कितना पावरफुल बना लिया आप, और कितना लगा कि एक स्किल हमने सीखा है और एक अहम हिस्सा बने इस इमेज का। रंगोली कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चरल इवेंट का बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है, तो यस मैम। हाउ आर यू फीलिंग? टेल मी व्हाट मैम? हाउ आर यू फीलिंग? मैम व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपका क्या फीलिंग रहा, आपने क्या सीखा? मैम सबसे पहले तो पहला टाइम था वो मतलब कैसे कोई ग्रुप में मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं बहुत इंजॉय के साथ, ये सबसे पहले हम लोगों ने सीखा। और सबसे पहले तो और एक डिसिप्लिन वे में भी हम लोग ने काम किया बहुत अच्छे से। और एक टीचर और एक चीज सीखने को मिला, जो एक दूसरे का सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। You are not audible, ma'am. I said I also saw that you were helping other teams also. Yes, ma'am. In way of some colors, that's you all are required. Okay. Yes, ma'am. चलिए next. Yes. Hello everyone. Hello everyone, my name is Sikandar Kumar, and first of all, I would like to thank you, ma'am, for giving me this opportunity to say something about Rangoli. So I'm going to sharing my experience, and I am going to share my experience on Rangoli competition. So Rangoli competition was organized yesterday on second of November, and sorry, and I have learned lots of knowledge from it, and I I am happy to join this team because every one of students of my team is very sincere, and he helps and we made Rongoli together, and and uh, and I would like to say
about what I understood and what I gain knowledge from it. First of all, when I want to participate in competitions, that time there is no students wants to participate. So I And this is try. also true that you were very sad that nobody is Yeah, ma'am. willing to participate, but then you took up this responsibility. So I try to join students with me to take uh, participate in Rangoli competition. So I learn uh, uh, how to tell students to join and how to manage it. So this shows your leadership skills, that you are capable of coordinating, of convincing people to come and do a particular work. एक मैनेजर का काम क्या होता है कि बहुत जो टीम कोई सक्रिय भी नहीं है, इनएक्टिव, हाउ टू क्रिएट एन एक्टिव टीम. तो ये मैनेजर का या लीडर का बहुत बड़ा ये स्किल होता है कि किस तरह से वो कन्विंस करता है, द वे ही और शी कन्विंसेस सो दैट अदर्स कैन पार्टिसिपेट. और इसमें अगर आप यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग अ टीम, कोऑर्डिनेटिंग अ टीम एंड flagging off the Rangoli competition. And yesterday I surprised to saw that Rangoli, which Rangoli is only one Rangoli of my life, and I made made a team, and the team made a Rangoli, and in Rangoli this is my first experience of my life. Before it, I never made any type of Rangoli, and I feel very proud of me, and I wish the team is always give their best. So thank you. Okay. Yes. Roll number 6. तुम हो. चलो. Good afternoon, my friends. Rangoli competition, my life first competition. My experience first time Rangoli competition. In competition. I know much learn because first time my life Rangoli competition, and so a group of team do work, a beautiful good team, and my friends, and in this competition okay. Next. Hello everyone, my name is Mithlesh Kumar. I am going to tell about my experience in Rangoli competition. In this competition, from this competition, I learned so many things. But and I learned also that what is responsibility in my life. Yes, ma'am.
स्पेशली क्या होता है। तो कैसा लगा आपने फुलफिल किया? अच्छा, अपने कुछ मिस्टेक्स तो हुआ होगा रंगोली में, कुछ खामियां तो नहीं होंगी? Yes, ma'am. क्या क्या चीजें कि अगले बार आप करेंगे, है ना? जो इस बार तो छूट गया लेकिन अगला बार कुछ हाँ। होगा। तो वो आपने उसको नोट कर लिया है अपने दिमाग में कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मेरे को नहीं करनी है, क्या क्या करनी है। करने से लोग इंसान सीखता है और गलतियां से भी सीखता है। करिएगा तो गलती होगी और गलतियों से इंसान सीखेगा। इसका मतलब गलती होगी तो हम करेंगे ही नहीं। इंसान करके ही सीखता है और मिस्टेक से आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। चलिए, और भी कोई था? और कोई भी नहीं थे? ये लोग ऑनलाइन लगते हैं। केशव तो कोई बोला है। चलिए, आज क्या पढ़ते हैं बताइए? ऑन बीइंग अ वर्ड। समराइज कर देते हैं और आधे ही बच्चे हैं, इसको समरी आप समझ लीजिए। सो ऑन बीइंग अ बोर, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के बोर होते हैं, वैरायटीज ऑफ बोर्स होते हैं, जो कि ये ऐसे बहुत सीरियस नहीं है, हंसने हंसाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया है। तो कई तरह के बोर्स होते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि सबसे पहले उनका था, द फर्स्ट इज द ट्रेन बोर्स। व्हाट इज द ट्रेन बोर? हु इज द ट्रेन बोर? ट्रैवलिंग के दौरान जो मतलब कि कोई व्यक्ति आके कुछ फालतू की बातें करती है। कहाँ पे? ट्रैवलिंग के दौरान। ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन में आए हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कोई अननेसेसरी बात करता है तो आपको वो बोर करते हैं। तो दे आर द ट्रेन बोर्स। उसने एक कहानी सुनाई थी, वो क्या कहानी थी? उसके बाद में एक अच्छा बात था तो उस बात पर ये राइटर ने कैसे जाना? वो अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे थे और देखिए, राइटर की ये खूबी थी, वो सोसाइटी में बहुत कुछ देखते थे, समझते थे और उस पर वो एसेज लिखते थे। तो कोई चीज को इंटरेस्टिंग लगी, उस पर वो ऐसे बना देते थे। तो ये इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इंसान इतना अमीर है, रिच है। वो क्या करता था? वो नहीं, वो क्या किया, क्या एक्टिविटी था? एक वॉच खरीदा मतलब कि वो बस पहना। डेम्सा से वॉच खरीद के Why वो did the गए American भागकर। buy a cheap watch? because you know that anybody came to me. पहले तो आंसर क्वेश्चन समझिए। Why did the American buy a cheap watch? सस्ती सी घड़ी क्यों खरीदा वो? Because he already know that people are bored in the. उसको फेंकने वाला था। Yes, ma'am. फेंकने के लिए कोई महंगी चीज नहीं खरीदेगा, इसीलिए वो सबसे सस्ती सी कोई चीज खरीदता है। वो पहले से महंगा वाला चीज पहने हुए थे, पहले से उसके पास खड़ी थी, उसको उतार देते हैं और सस्ती सी पहन लेते हैं, ताकि क्या होगा? उसको फेंक सके और फेंक सकते हैं अपने गुस्सा दूसरे को जाहिर कर सकते। गुस्सा नहीं, गुस्सा क्यों जाहिर करेंगे? क्रूरता को दिखा के और अपनी बोरियत से बच जाएंगे कि कोई उससे बात नहीं करेगा। एक नाटक करेंगे वो, ताकि वो पागल है और ताकि लोगों को भगा सकें और उसके पास कोई आसपास कोई फटके नहीं, कोई आए नहीं। तो भाई तुम जानो कि मैं पागल हूँ, तो अभी आओगे नहीं, तो आप पता नहीं, बच के रहो भाई, इसको पता नहीं क्या क्या। तो और अगर हमको किसी को डराना है, भगाना है, तो क्या करेंगे? हवा वैसे बनाएंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, ताकि दोबारा कोई पूछने। लेकिन किस तरह से राइटर की का जो विचार है वो भिन्न है। किस तरह से राइटर सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। क्यों ऐसा बोला? क्यों ऐसा बोले रॉबर्ट लिंच ने?
उसको बातचीत करने में मन लगता है, किसी के, और ट्रैवलिंग में उसको मन लगता है। हाँ, वो बोले कि यहाँ तो बहुत मजा आता है। ये बोलते हैं बिना टिकट के हम सिनेमा देख रहे हैं, बिना टिकट के हम थिएटर देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, प्ले देख रहे हैं, बिना टिकट के हम एंटरटेन हो रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है, बस बैठे हैं और तरह तरह की कहानियां सुन रहे हैं। तो राइटर क्या करता है, ही डिफर्स फ्रॉम द व्यूज ऑफ द अमेरिकन बिकॉज ही लाइक्स टू ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है, सिंपल। So because writer listen to and see the trend person. तो लगता है कि जैसे इंटरटेनमेंट मेरे उसको अच्छा लगता है, उसको देख इंटरटेन हो जाता है। अब बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो तरह तरह की चीजें नजर आती हैं ट्रेन में, और राइटर को ये देख के अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है अच्छा, और उनको मन लगता है लोगों से बात करने में, बात सुनने में। वो बोर फील नहीं करता है। वो नहीं बोर फील करता। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन में अच्छा लगता है उनको, हर स्टेशन में लोग उतर जाते हैं कुछ कुछ करने, फिर चढ़ जाते हैं, मतलब घूमना घामना देखना अच्छा लगता है। क्या चीज जा रहा है ट्रेन में, उसको सब जो जा रहा है उसको खरीद लो। ठीक है, और एक एडवेंचर होता है, घर से बाहर निकले, ट्रेन से जा रहे, मजा आता है, खेत देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं खिड़की से बाहर, और कहीं जाने का एक्साइटमेंट होता है। आप कहीं जा रहे हैं 2 दिन के लिए भी, तो एक अंदर एक एक्साइटमेंट भी रहता है। तो ट्रेन में बैठना, यू फील गुड। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ बोर, कोई पढ़ा है क्या समरी इसको? Second is golf board. Ma'am, और बताइए, अगर आप पढ़े हैं तो बताइए। नहीं पढ़ के आया कोई? आप पीडीएफ देखिएगा, खोल के पढ़िएगा तब हो जाएगा। यस शिवम? the second type of board is golf boards. शिवम गुप्ता बोलो। Ma'am, Hello. he is telling the second board was golf board. अपने को पहले अनम्यूट करो और कैमरा ऑन करो। Am I audible, ma'am? The second type of boards is golf boards, who can explain his way of his way of playing the games with someone other also who did not want to listen this type of game. ठीक है, गोल्फ एक तरह का स्पोर्ट्स होता है ना? गोल्फ खेलते हैं कभी आप? जानते हैं। तो यह बात कर रहे हैं गोल्फ के बारे में। दूसरा जो टाइप ऑफ बोर्ड राइटर जो बोलते हैं, आप टेक्निकल से लिख लीजिए, ठीक है? फर्स्ट ट्रेन बोर्ड्स, सेकंड गोल्फ बोर्ड्स। पीपीटी नहीं निकाल रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन बता दे रहे हैं, समराइज कर दे रहे हैं, ताकि बच्चे कम भी आए और पीपीटी जब निकालेंगे टाइम काफी हो जाएगा। गोल्फ बोर्ड्स वो होते हैं कि जो गोल्फ बहुत कम लोग खेलते हैं। जैसे अभी पूछा जाएगा कि क्रिकेट कितने लोग खेलते हो, जानते हो, सब हाथ उठाओगे, लेकिन गोल्फ कितने लोग खेलते हो तो हाथ कम ही उठेगा। जानते हो गोल्फ क्या है, लेकिन पॉपुलर गेम नहीं है,
कुछ ही लोग खेलते हैं। तो सेकंड जो बता रहे हैं गोल्फ बोर्ड के बारे में, जो कि जब देखो तो गोल्फ के बारे में ही बात करते रहते हैं और ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनको गोल्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो क्या होंगे, वो गोल्फ बॉल के बारे में बात करते हैं, टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको कभी उसको खेलना नहीं है, उसको जानना भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपनी कहानी बोलते हैं। हाँ हाँ क्या गोल्फ गेम क्या होता है? गोल्फ एक गेम होता है जो ऐसे मारा जाता है और एक हॉल में जाता है, एक होल में जाता है, स्टिक से जाता है और ऐसे करके उसको गोल किया जाता है। तो उन लोगों से बात करते हैं गोल्फ के बारे में जिन्होंने कभी गोल्फ का बॉल देखा नहीं, तो वो तो बोर होते रहते हैं ना। सपोजिंग मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, नहीं देखना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब आप मिलेंगे क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो क्या हम हो जाएंगे? आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप हॉकी खेलते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जब मिलते हैं तो ऐसी कुछ बात करते हैं जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या होंगे? कोई भी ऐसा गेम जो हम नहीं खेलते, जो हम खेलना चाहते भी नहीं और मुझे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आप हमसे वही बात करेंगे तो क्या होगा? तो सेकंड ही टॉक्स अबाउट गोल्फ कोर्स। तो ये भी उन्होंने अपने तजुर्बे से जाना था कि गोल्फ क्लब था, गोल्फ क्लब में सब गोल्फ खेलते हैं, सारे लोग गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई पहुंच गया जिससे कोई मतलब नहीं है और आपको उसको सिर्फ गोल्फ के बारे में बात करते हैं तो वो बोल जाता है। ठीक है, तो गोल्फ हो या क्रिकेट हो या वॉलीबॉल हो या बैडमिंटन हो, फॉर एग्जाम्पल आप सिंगिंग नहीं, आप नहीं कर, जैसे रंगोली में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो वो लोग नहीं आए इसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई मतलब नहीं है। अब सिकंदर उनसे बार बार रंगोली के बारे में बात करेगा तो वे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। और जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनसे बात करोगे तो क्या हो जाएगा? दे विल बी बोर्ड। वो बोरिंग नहीं है, बोरिंग आप हो जाइएगा। ठीक है, सो सेकेंड वाज द गोल्फ कोर्स। थर्ड बोर्ड कौन थे बताइए कोई? The motoring boards. शिवम तुम पढ़े हो, तुम बताओ, समझाओ कि क्या है मोटरिंग बोर्ड्स? अगर पढ़े हो, कुछ समझ में आया है तो बताओ। हेलो, ऐसा होता है ये तो बॉस में सफर करता होता है, मतलब बात यदि रोड में बात मिटाने के रोड पे लिए कोई मतलब चीज आ जाए तो मतलब कोई ट्रेवल कर रहा है तो बात समझ मरा हुआ चीज आता है, रोजमर्रा मतलब जैसे हम रोज ट्रेवलिंग कर रहे हैं, हमको सफर में एंजॉय करते जाना, किसी से बातें कर तो बोर कहाँ से हुआ? अभी करो मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ट्रैफिक आ जाता है ना, ट्रैफिक आ जाता है तो बहुत देर तक गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है, उसमें बोर हो जाता है। हाँ सही, जब ट्रैफिक बहुत धीमी गति से चलती है
जाम हो जाता है। मोटरिंग जो गाड़ी चलाते हैं या जो बाइक चला रहे हैं उनके लिए क्या होता है, बहुत ही बोरिंग हो जाती है कि गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है और जहां पहुंचना था 1 घंटे में वहां पहुंचते 4 घंटे में आप। वो जो फासला होता है, वो जो समय जो होता है विच इज वेरी बोरिंग, वो टाइम जो होता है दैट इज वेरी बोरिंग। कभी जाते रहो तो 5 मिनट 4 मिनट का ट्रैफिक लाइट्स हो जाता है, तो 4-5 मिनट लगता है 5 घंटा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक जैम्स होता है वो जाइए डाक बंगला पे या कभी कहीं चले जाइए तो इतना बॉटलनेक होता है। आप यहाँ से निकलिएगा ना अगर, तो इंडस्ट्रियल एस्टेट से बाहर निकलिएगा तो कहीं कितने जाम रहता है, कल आधे घंटे में वहां से कुछ लेते हैं। तो आधे घंटे का टाइम बोरिंग पीरियड होता है। फिर राइटर बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि ट्रैफिक बोर्ड्स या मोटरिंग बोर्ड्स, जो लोग चलाते हैं साइकिल बाइक गाड़ी जो भी, तो ट्रैफिक में जो जैम में जो फंस जाते हैं दे गेट डिरेल्ड, जो भी काम कर रहे हैं उस पटरी से गाड़ी उतर जाती है उनकी और वो बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो अगल बगल जो भिखारी बैठे होते हैं तो उनका तो जहाँ गाड़ी रुकी नहीं, कोई बेचने वाले नहीं बोलते, वो भी बोरी करते हैं। 2 मिनट का जो ब्रेक रहता है, ये खरीदो वो खरीदो ये खरीदो, वो आ जाता है। तो यहाँ पर वो लोग की बात नहीं है, अगल दोनों तरफ रोड के भिखारी बैठे हुए हैं, तो यहाँ गाड़ी धीमी गति रफ्तार पकड़ी तो ये लोग आपको मांगने के लिए चले आते हैं। वो उनकी बोरियत और भी बढ़ा देता है। लेकिन जब बैड रोड्स है तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, जैम्स है तो ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगा, तो भिखारियों को तो उनके तो दिन निकल जाते हैं। राइटर ने कहा है कि वो लोग आके मांगने चले आते हैं और बहुत खुश होते हैं। जितनी लंबी जैम उतनी अधिक उनकी कमाई। वो सोचते हैं ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज के दिन में हमको इतनी कमाई मेरी होगी। दे आर द मोटरिंग बोर्ड्स। उसके विपरीत देखिए, ये हमेशा अगर कॉल बॉस के बारे में बात करेंगे, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि राइटर बहुत ही दोनों तरफ से देखते हैं इस बात को। ऐसे लोगों के बीच में है जो गोल्फ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए तो आप बहुत अच्छा। जो राइटर बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है स्पोर्ट्स जानना सीखना टेक्निक्स, लेकिन उनके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी के लिए जो नहीं जानना चाहता है उसके लिए बोर है। और मोटरिंग बोर्ड्स उनके लिए तो बोरियत है, लेकिन उन भिखारियों के लिए boon है। यस, इट इज अ बून। बून का मतलब वरदान। गुण। चलिए नेक्स्ट वर्ड्स क्या है, ये थर्ड बोर्ड हुआ। पॉलिटिकल बोर्ड्स। नहीं, रूट बोर्ड्स नहीं है। हाँ, रूट बोर्ड्स नेक्स्ट लिखिएगा, रूट बोर्ड्स ROUTE। रूट बोर्ड्स वो होते हैं, राइटर ने एक्सपीरियंस किया कि एक महिला बस से उतरी, a lady got out of the bus
और उतरते वो कंप्लेन कर रही है कि बाप रे इतनी देर है मैं पहुंची हूँ। बगल में एक इंसान खड़ा था, तो बोलता है आपने तो दूसरा बस ही पकड़ लिया था, आपने अगर बस नंबर 501 पकड़ लेते तो आप आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाते। राइटर बोलते हैं कि जो जिस बस के बारे में वो बात कर रहा है वो बस अगर पकड़ती तो महिला शाम रात तक भी नहीं पहुंचती। उसका कहने का मतलब है कि कई लोग ऐसे हैं बस बोलने के लिए कुछ बोल देते हैं। तो पूछेगा पाटलिपुत्र ब्रांच कहाँ है भाई? पाटलिपुत्र, उटपटांग बता देंगे कुछ आपको रास्ता, आप पता नहीं कहाँ चले जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछा भी नहीं, लेकिन आपको आदत है उटपटांग कुछ बता देने का और दूसरे को बोल करने का। जो नहीं जानता हो तो आपके राडार में आ जाता है कि बताइए पाटलिपुत्र ब्रांच कैसे जाएंगे भाई? अच्छा पाटलिपुत्र ब्रांच, ऐसा उल्टा बता देगा। ऐसा करो, ऐसा करिए, यहाँ से एक ऑटो पकड़ लीजिए, हाँ चल जाइए बोरिंग रोड, अभी वहां से लेफ्ट चले जाइएगा, बस पहुंचा देगा। वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा लोग होते हैं। कुछ लोगों की आदत है घुमा फिरा के उल्टा बोलने का। तो सुनिए भाई, वो ऑफिस कहाँ है? इधर है ना? और नहीं तो क्या उधर है? मतलब बोलिए ना इधर है कि हाँ, तो हाँ तो कहे, हाँ क्या मतलब किधर है? है ना? कैसा मतलब सिविल कैसे मतलब अच्छा लगे तो अच्छा नहीं मतलब कहे ऐसे ही हाँ, और नहीं तो क्या उधर है? तो रूट बोर्ड्स आदतन कुछ लोगों को आदत होती है कि जिसके लिए सही है वो तो सही है, और जिसके लिए सही नहीं है तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी राइटर को पता है तब ना कि ये बस पकड़ के, जो जनाब बता रहे हैं कि ये बस पकड़ के आ जाती तो आप पहुंच जाती आधे घंटे में, तो राइटर बोलते हैं कि उस बस पकड़ के वो आती तो उसको कम से कम उसको 5 घंटा लगने वाला था। तो अननेसेसरी बात करना, गलत जवाब दे देना, गलत बता देना, अपने से पहल करके कुछ भी बोल देना, कुछ लोग आदत होती है। झूठ बोलने में क्या जाता है, आदत है। एक बार ऐसी रूट बोर्ड के बारे में बात नहीं है, मेरे पास फोन आया, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तो वो फोन की। अब फोन करके हम ऑफिस से घर गए तो फोन करके बोलती हैं, ये सुनो ना, ज्यादा कुछ मत बताना, ज्यादा कुछ मत बनाना, एक आध दो सब्जी बना लेना और कुछ नॉनवेज बना लेना, ऐसा करके बोली। तो हम बोले हम आइएगा क्या? बोले हाँ देखो ना, उनका बेटा का नाम विपुल है। तो विपुल आया था और बोला था मामी मिली थी, और मामी बोली सबको जरूर आना है खाना खाने के लिए, और नहीं कोई आएगा तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। हम बोले कि अच्छा, विपुल ने कहा है? हाँ तुम मिली थी ना उससे, तो बोल रहा था कि मामी ने बुलाया है सबको खाना खाने के लिए, अब बोलने के जो नहीं जाएगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। अब क्या बोलते कि नहीं बुलाए, तो हम कहे ठीक है। तो फिर हम शुरू हो गए बनाना। बाद में विपुल को, जो सब लोग मेरे यहाँ आया था, विपुल अच्छा हुआ कि तुम सबको बोल दिए थे, मेरे इनवाइट कर लिए थे मेरे तरफ से। ऐसा वो झेपा, हाँ बहुत दिन हो गया था आपके यहाँ का नहीं लोग खाना खाया था, इसलिए हम आप बोल रही थी कि चलेंगे वहां से, बहुत दिन से नहीं बुलाई है। तो कुछ लोग मतलब
उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आदत है कुछ भी उटपटांग भी कुछ बोल देने का। तो यहाँ पर बोर कौन हुआ? उनकी तो बहुत हैप्पीनेस हो गई कि उनको और बोर कौन यहाँ पर हुआ? तो इस तरह की कहानी लिटरेचर में आपको छूट मिलती है कि कुछ अपना भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स, इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये समझ में आ जाए कि आपको बात समझ में आ गई। प्रॉस एंड कॉन्स रहता है। तो ये रहता है रूट बोर्ड्स, ऊट पटांग इधर से उधर बता देने का। सही कोई और बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल बोर्ड्स है ना। पॉलिटिकल बोर्ड्स में राइटर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। और उनके एक्सपीरियंस क्या है? जब वो छोटे थे, 10, 11, 12 साल के थे, तो उनके एक अंकल आया करते थे जो उनके बगल में रहते थे। अब एक अंकल हैं जो उनके यहाँ आ जाते थे। अब 11-12 साल का बच्चा क्या समझेगा पॉलिटिक्स क्या है? अब ये अंकल जो उनके हैं वो बार बार आते थे एंड उनको एक ही टॉपिक था, पॉलिटिक्स। अब इसको तो बोर होना है इनको, तो बहुत ही बोर, डेली वही टॉपिक, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। एक दिन रॉबर्ट लिन सोचे, ये अपना प्लान बनाए, इस बार इनको पता चलाते हैं, इस बार आई विल टीच हिम अ लेसन, उनको सबक सिखाएंगे हम। तो जैसे ही इनके अंकल आए तो ये निकल जाते हैं और बोलते हैं अंकल चलिए बाहर चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, लेट अस गो आउट, लेट अस गो फॉर अ वॉक। निकल लिए अंकल में, निकल लिए। अब जैसे ही वो बोलना शुरू किए तो रॉबर्ट लिन खूब चिल्ला करके बोलना शुरू किए, गाइड बन गए, टूरिस्ट गाइड बन गए। और जितनी जानी पहचानी चीजें थी उसके बारे में, उन्हीं के घर के बारे में बोल रहे हैं। ये मिस्टर विल्सन का घर है, and this road is made by King Edward, this building is made by, और धीरे धीरे भी नहीं, इतने चिल्ला के वो बोल रहे थे, इतने चिल्ला के वो बच्चे थे कि उनके अंकल एकदम से बोर हो गए। और जब उनको 10 मिनट बाद बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने कान पे दोनों हाथ रखे बोलते हैं, ओ माय गॉड, व्हाट अ बिग बॉम्ब बोर यू आर। उसके बाद से उन्होंने पॉलिटिक्स क्या, उनका चेहरा भी देखना गवारा नहीं सकता। तो राइटर अपने बारे में लिखते हैं कि आई वॉज अ बॉम्ब बोर इन चाइल्डहुड। बोलता कुछ लोग तो कंफर्म किए थे कि कुछ लोगों ने कंफर्म किया था कि आई वॉज अ चाइल्डहुड बॉम्ब बोर, और कुछ लोग कंफर्म नहीं किया, मतलब और लोगों को कितना बोर किए होंगे तो हमको नहीं पता है। ये कुछ ही लोग कंफर्म किए थे आई वॉज अ बॉम्ब बोर। फिर आपका था वन वे बोर्स। ये कहानी बहुत ही टेक्निकल है, डिफरेंट तरीके की स्टाइल्स ऑफ बोर्स। क्या दिया गया? क्या मैं बताई हूँ ना, क्लास करने से ही बात यही ना है। पीरियड में बहुत कुछ नहीं रहता है ना, तो समराइज करके बता दिया था। ओके क्या ऑनलाइन सिमेज ऑनलाइन क्लासेस देखिएगा। सिमेज पटना नहीं, सिमेज ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। हाँ सिमेज ऑनलाइन क्लासेस देखना। हाँ तुम टाइप करोगे ना सिमेज ऑनलाइन क्लासेस, फिर आप उसमें आ जाएगा।
दूसरा है वन वे बोर्ड्स। अब ये वन वे बोर्ड्स क्या होता है, समझ सकते हैं आप क्या है? वन वे बोर्ड्स, टू वे बोर्ड्स, चाइल्डहुड बोर्ड्स। वन वे बोर्ड्स होता है जब दो आदमी है या 3-4 आदमी है और एक ही बंदा बोले जा रहा दूसरे को बात ही करने नहीं दे रहा, तो ट्रैफिक वन वे जा रहा है, खाली उधर से कोई इंटरेक्शन अलाउड ही नहीं है, तो क्या होगा? वन वे बोर्ड्स। मतलब आप सिर्फ बोल रहे हो, बाकी लोग भी जमा ही आ रहा है, बाकी लोग बोल हो रहा है, और जब तक कि दोनों तरफ से बातचीत नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। One way boards are when two people meet and only one person is talking and the other person is not allowed to speak. This is the one way board. One way board. It means the traffic is just one way. Conversation is only one way, which makes the other person feel bored. They feel bored. अब हम ही बोल रहे हैं, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कहीं पार्टी में गए हो और बस तुम ही पूछ रहे हो क्या हाल चाल है, क्या है, ठीक है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तुमने खाया क्या, नहीं, अब क्या हो जाएगा? या जवाब नहीं भी मिल रहा, आप मोनोलॉग बोले जा रहे हैं, आप एक तरफा बात की जा रहे and the other person does not get a chance to speak. They are the one way boards. और टू वे बोर्ड्स क्या होता है? नहीं, टू वे बोर्ड्स होता है जब दो दोस्त मिलते हैं बहुत दिन के बाद, ठीक है, तुम ही मिलोगे 10 साल के बाद कभी, तो रात में बैठ के गप करोगे, सिकंदर मिल रहा है केशव से या तुमसे मिल रहा है, तुम भी विप्रो में है, वो इन्फोसिस में चला गया है, और कहीं ना कहीं तुम लोग मिलते हो, हाँ भाई क्या हाल है यार, सिमेज का रेस याद है तुमको, हमने रंगोली बनाई थी, तुम रात भर मतलब खाना पीना खाते हो, रात भर गपशप करते हो, दिन भर में तुम लोग घूमते घामते बहुत गप करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं कोई टॉपिक नहीं है, हाँ भाई शादी वादी कर ली, हाँ शादी कर ली तुमने, हाँ शादी कर ली, उस पर तुम लोग के पास कोई टॉपिक नहीं रहता है, और दोनों की फ्लाइट है शाम 8 बजे, तो लोग क्या करते हैं एक दूसरे को, जब कोई टॉपिक ही नहीं है तो वो एक दूसरे को बोर करते रहते हैं, जैसे कि सेल्फी जायंट में हुआ था। सेल्फी जायंट कहाँ गया था 7 साल के लिए? अपने दोस्त के पास। और 7 साल के बाद वो इतना बोर हो गया अपने दोस्त से कि सोचा कि बेकार यहाँ बैठे हैं, चलते अपना घर। So when two friends meet after a long time, they have so many things to talk about, but after some time, the topic is over. No topic. Topic is finished. So they start boring each other. और लास्ट आता है वॉर बोर्स। वॉर बोर्स मतलब जो लोग लड़ाई में, अभी ऐसे है ही, ऐसे लोग हैं जो कभी सेना में थे भर्ती, जो लड़ाई पे काम की, लड़ाई किए हैं, बच गए, सर्वाइवर्स ऑफ द वॉर, उनसे जब मिलोगे ना तो वही बात करेंगे, ऐसा हुआ था, गोली लगी थी, ये हो रहा था, वो सिर्फ उससे आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो वो जब मिलेंगे तो अपनी बहादुरी की कहानी बताएंगे, ऐसे हुआ था, इतनी ठंड थी, हम लोग ऐसे करते थे, वो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन जब हम उनसे मिलेंगे तो उनके पास एक ही टॉपिक है, अपनी कहानियां बताएंगे। वॉर बोर्स जो कभी काम कर चुके हैं, बीते हुए मतलब कि वो
ये बोलना चाहिए कि लड़ाई में लड़ाई करते हैं, और लड़ाई के बारे में लड़ाई के बारे में ही बात करते हैं और किस तरह से वो बच के निकले हैं और क्या क्या हुआ था। तो ठीक है, एक बार 2 बार 20 बार लोग अच्छी तरह से सुनते हैं, उसके बाद क्या होता है, दे स्टार्ट फीलिंग। और राइटर बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अभी लोग बात करना चाहिए एयर अटैक के बारे में बात करना चाहिए। तो घिसा पिटा हो गया, उसको छोड़ करके अब ये लोगों को नया टॉपिक लेना चाहिए, कैसे ऐसे एयर अटैक होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करना चाहिए। लड़ाई हो चुका है नहीं, आप शामिल थे, आप भी फ्रंट पे थे। नहीं, तुम शामिल थे ना, तुम शामिल थे, अपने बारे में बात कर रहे हो, ऐसे हुआ वैसे हुआ। वॉर, जो लोग वॉर में शामिल थे, जो लोग फ्रंट पे लड़ाई कर रहे थे। उसको नहीं बोल सकते, तो बूढ़ा आदमी है, वो अपने जमाने में बता रहा है कि हमारे जमाने में हुआ। वो भी जरूर हो सकता है कि हाँ ओल्ड पीपल, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं। अगर आपके सामने ऐसे हैं लोग तो हम तो लिख सकते हैं, there are people who like to repeat the same stories again and again and again. So people listen with interest. बाद में ऐसे लोगों के पास लोग जाना छोड़ देते हैं, क्यों? और वो बूढ़े लोग होते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, इसलिए कोई इनके पास बैठता नहीं है। क्यों? जब बैठेंगे तो वही बात करेंगे वो, चाहे वो लेडी हो या फिर वो जेंट्स। उनके पास और कोई कहानी नहीं है, वो अपने बारे में बात करेंगे, वो क्या क्या किया करते थे वो बात करेंगे, वो क्या जॉब करते थे, they will talk about it. तो ऑन बीइंग अ बोर बस यही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कोशिश कीजिएगा पीडीएफ पढ़ने का, समझने का। क्वेश्चन नहीं है, Write the summary. What do you mean by train boards? What do you mean by route boards? What do you mean by one-way boards, two-way boards? पूरी क्वेश्चन ही पूरी है इसमें। तो कितने ऐसे कंप्लीट हो गए? इंडिया अगेन और ऑन बीइंग अ बोर। आपका एक ऐसे बाकी रह गया है, वो है लाइफ फिलॉसफी। अब आप बहुत तेज रफ्तार जा रहे हैं, 3 थ्योरी खत्म, 2 ऐसे खत्म और इस सेकंड बन जा रहे हैं ना। ठीक है मैम, ये वाला इससे एक बार और करवा दीजिएगा ना, नेटवर्क इशू था मैम। ठीक है, करा देंगे। पीडीएफ तो मेरे पास है, सॉरी पीपीटी है मेरे पास, आई सेंड यू। चलिए, ओके देन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू मैम। हैप्पी दिवाली मैम। Have a nice day, ma'am. हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली मैम। बाय मैम। Bali, ma'am. हैप्पी दिवाली।